So we can start the webinar now. Hello, everyone. I'm Maninder Kaur, and I'm the National Coordinator at India Alternative Care Network. At the back end is Nawa Fatima, the Communications Associate at IACN, who's supporting us to run the webinar. Thank you all for joining the webinar on gatekeeping as a systematic process preventing child separation, organized by IACN in association with Miracle Foundation India. We appreciate you posting questions and comments in the registration form, and our speakers will address these either in their session or during the Q&A session. We request you, if you have any questions or comments throughout the session, please share them in the Q&A box. The session will be recorded and the recording will be shared with you. Now, I would like to briefly introduce you to Miracle Foundation and IACN. Next slide, please. Miracle Foundation India works with a vision of a family for every child in our lifetime. The organization has emerged as an industry leader in family strengthening and family-based alternative care, helping to reintegrate children with families and working at the local level to prevent child separation from family using proper gatekeeping mechanisms. The focus is to enable youth and caregivers to live a meaningful and productive life. In this work, Miracle utilizes the power of evidence to create real, substantial change. Their proven Thrive Scale methodology is based on UN Convention on the Rights of the Child and Juvenile Justice Act, which allows to systematically measure and improve all aspects of child's well-being. India Alternative Care Network, you can learn more about Miracle on their website. India Alternative Care Network is an alliance of practitioners, researchers, academicians dedicated to generate and disseminate knowledge on issues related to children at risk and promoting family-based care and aftercare. You can check IACN's website to know more. You can also join the network and become IACN's member. So today, for this webinar, we have with us key stakeholders and experts from across the country who have been extensively involved in implementing child protection and family-based care and gatekeeping. I wish to share with you the objectives of the webinar, which include understanding gatekeeping as a systematic process, its vision, getting acquainted with the components, tools, mechanisms, stakeholders, and their role in effective gatekeeping, and learning some promising practices at primary, which is community level, secondary, CWC level of gatekeeping. But what is the need to talk about gatekeeping? In the recent past, we have observed a strong commitment of child protection workforce to strive towards family-based care for children. This comes from their field experience and numerous studies and research which provide evidence of the negative impact of institutionalization of children who live in the impersonal residential spaces for a significant period of their childhood, getting disconnected from their family bonds, their roots, their culture. We have started to question, why do children with parental ties and those who have kin, why do they get separated from their families? And what needs to be done to prevent children's vulnerability? And so, gatekeeping. Gatekeeping is the essential function of gatekeeping is to prevent unnecessary and potentially damaging separation of children from their families or placement in alternative care by addressing the root cause of separation and vulnerability, such as poverty, child abuse, trafficking, child labor, child marriage, limited access to education, and other drivers of separation. Now I invite Ms. Parul Patle to help us understand what is gatekeeping in more detail. Ms. Parul manages the Family Strengthening and Family-Based Alternative Care arm of strategy at Miracle Foundation India. She is a counseling psychologist and a development professional with extensive experience working with children, young adults, and families,
navigating through various psychological and social concerns. Over to you, Parul. Hello and good morning, everyone. Thank you, Maninder, for the introduction and for setting the stage for this very important discussion. I want to welcome everyone to today's session on gatekeeping. And taking what Maninder said forward, I would just like to set a bit of context and to talk in a little more detail about what it actually means when we say gatekeeping and what are some of its key functions and aspects. So, what is gatekeeping? A definition many of us have heard, and one which is used most widely goes something like gatekeeping is a systematic procedure to ensure that alternative care for children is used only when necessary and that the child receives the most suitable support to meet their individual needs. Similar caveats exist in both JJ Act and more recently Mission Vatsalya as well. Now, what does this mean? If you think about gatekeeping, even if you look at the most literal meaning of the word, it refers to keeping a lookout at access points or entry points of any system. So similarly for child protection and in the continuum of care, gatekeeping refers to keeping a watch and ensuring that vulnerable families and children are identified at an early stage at the entry points, for example, at community level or at CWC level, and based on the assessment of their needs are then linked to appropriate support services that are needed for them to thrive and to prevent separation. The process of gatekeeping makes certain that children enter into alternative care options only if and when all other efforts of supporting child's well-being in the family has proven unsuccessful, or if the family proves to be an unsafe environment for the child. So we can say an effective gatekeeping system, A, prevents children from being unnecessarily separated from their parents and families or placed in alternative care. B, it helps reintegrate children already in alternative care back into their own families and communities. And C, it supports communities and organizations responsible for the care of children to make decisions through a consistent and informed process. Now, based on these three functions, different levels at which gatekeeping happens are defined. To put it really simply, just like any other system, one door leads to another. And for an effective gatekeeping process, we should be keeping a check on all these doors. So to do this, the process of gatekeeping has been divided into primary, secondary, and tertiary levels. So I'm going to talk about in a little more detail what these different levels are. So the first primary level is gatekeeping at the level of community, the first door. Through activation and capacitation of community level bodies, as they become the first point of contact for families in vulnerable circumstances. And this is where approaches that tackle community or societal factors, putting families and children at risk of separation, come into play. So right there, through family strengthening, a preventive measure can happen preemptively. So as soon as a family is identified as being at risk, making this sort of the first level of gatekeeping. Secondary level is gatekeeping at the level of CWC. So this is when a child is produced in front of a CWC, the second door. And at this level, an initial assessment of the situation and family can provide valuable inputs on whether a child needs to be separated from the family and placed into an alternative care option, or if approaches aimed at addressing or reducing risk factors can be used to strengthen the family while the child still remains with the family. And so this becomes the second level of gatekeeping. And lastly, the third door, the tertiary level,
is gatekeeping while the child is placed in an alternative care option to ensure reunification, and after reunification to prevent reseparation. So these are the 3 levels of gatekeeping at the level of community, at the level of CWC, and while the child is in alternative care. So all in all, this is how we're sort of defining gatekeeping and defining the different levels of gatekeeping. Thank you, and thank you for your time. Over to you, Maninder. Thank you, Parul, for introducing gatekeeping. We have received a request कि हम थोड़ा हिंदी में भी बात करें क्योंकि हमारे साथ PCPC members भी जुड़े हैं. तो पारुल, Alright. थोड़ा सा एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी गेटकीपिंग को थोड़ा सा अगर आप हिंदी में भी एक एक्सप्लेन कर सकें तो a bit of that. Sure. So, जैसे कि मैं कह रही थी, gatekeeping एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहां पर ही चेक कर सकते हैं और वहां पे ही इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू मेक श्योर कि बच्चे फैमिली से अलग ना हो रहे हों. और ऐसा करने के लिए 3 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे फिर गेट कीपिंग डिवाइड की गई है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल्स पे. पहला जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे ये गेट कीपिंग का प्रोसेस हो सकता है इज कम्युनिटी के लेवल पे. सो कम्युनिटी में जब आप फैमिलीज के साथ काम करते हैं, whenever a family is recognized as being at risk, so आपको पता चलता है कि कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे because of many reasons, education related reasons या फिर फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज या फिर ऐसी किसी वजह से आप कम्युनिटी में रिकग्नाइज करते हैं कि हो सकता है कि बच्चा फैमिली से अलग हो जाए. तो यहाँ पे एक प्राइमरी लेवल चेक हो सकता है कि हम फैमिली के साथ काम करें, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से लिंक करें ताकि इस लेवल पर ही जो भी उनका वल्नरेबिलिटी है वो रिजॉल्व किया जा सके और फैमिली और बच्चे को सेपरेशन की तरफ नहीं बढ़ना पड़े. सो वो होता है पहला आपका गेट कीपिंग का लेवल. दूसरा आपका जो लेवल होता है वो सेकेंडरी लेवल होता है CWC के लेवल पे, कि जब बच्चे या परिवार CWC में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. तो इस स्तर पे फिर हम CWC के साथ काम कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या जरूरी है बच्चे को फैमिली से अलग करना, या फिर फैमिली के साथ हम काम कर सकते हैं, उनके साथ लिंकेजेस कर सकते हैं ताकि वो सेपरेशन ना हो. एंड तीसरा लेवल है जब बच्चा ऑलरेडी किसी CCI में है या किसी ऑल्टरनेटिव केयर ऑप्शन में है और वहां पे फिर हम फैमिली के साथ और बच्चे के साथ काम करते हैं ताकि बच्चे को हम फैमिली के साथ रीयूनाइट कर सकें और फिर फैमिली के साथ कंटिन्यूड फॉलो अप और काम ताकि बच्चा फिर से फैमिली से अलग ना हो. तो ये तीन हमारे लेवल्स हैं, 3 दरवाजे हैं जहाँ पे हम बच्चे और फैमिली का सेपरेशन रोकने की कोशिश करते हैं, एंड that is what we are calling gatekeeping. Okay, thank you so much, Parul. Yeah, so now we move on to a panel discussion which will focus on the how of gatekeeping. Gatekeeping किस तरह की जाए, which talks about process, interventions, tools involved in primary level and tertiary level, secondary level of gatekeeping. Primary, the community level; secondary, CWC level of gatekeeping. So I invite Ms. Sharmila Ray to chair the panel discussion. Ms. Sharmila Ray leads the Child Protection Program in UNICEF Gujarat as a child protection specialist. Prior to this, she has worked in Bihar and Rajasthan. Through her career in the sector, Sharmila has passionately focused on driving change with partners and stakeholders across different areas of child protection concerns, including child marriage, child labor, violence against children, and children vulnerable to or those who have fallen out of the social safety net.
Sharmila holds a master's in public policy from King's College. Welcome, Sharmila. थैंक्स मनिंदर, थैंक्स ऑल्सो पारुल कि आप लोगों ने गेट कीपिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको इतने डिटेल में इतने सरलता के साथ समझाया। आई एम श्योर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफी बेनिफिट हुआ है इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से ब्रेक डाउन करने से। विदाउट फर्दर अडू, जो पैनल डिस्कशन है, 4 पैनलिस्ट हैं हमारे आज, एंड जो पैनल डिस्कशन है वो फोकस्ड रहेगा कि क्या है रोल अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग लेवल्स पे ऑफ गेट कीपिंग, बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेट कीपिंग का जो अर्थ है वो पारुल ने भी बहुत डिटेल में समझाया, मनिंदर ने भी अभी रिकैप किया है। तो इसके लिए मैं मिस्टर रुशन भाई, जो कि छोटा उदयपुर में जलोड़ा में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो इसको लेके थोड़ा और समझाएं कि सीपीसीज का क्या रोल हो सकता है प्राइमरी लेवल ऑफ गेट कीपिंग में, अर्ली गेट कीपिंग में। रोशन भाई जो हैं उन्होंने बैचलर्स किया है रूरल स्टडीज में शारदा ग्राम यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से। रोशन भाई, कैन आई इनवाइट यू? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड। हाँ जी, मेरा नाम राठौड़ा रोशन भाई है। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर मैं बाढ़ सुरक्षा समिति अभी वीसीपीसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वीसीपीसी में काम करते करते हमको ये वीसीपीसी मेंबर्स के लिए हमारी जो मुख्य भूमिका है, ये भूमिका यही है कि जो रिस्क वाले परिवार है उनको हम कैसे पहचाने और उसकी पहचानने के बाद उसका रक्षण भी कैसे किया जाए, जिसमें हमको गुजरात बाढ़ सुरक्षा सोसाइटी, यूनिसेफ, मिराकल, दीपक फाउंडेशन के सहयोग से हम गुजरात राज्य में हमारे छोटाउदेपुर जिले के 4 गांवों में हमें छोटाउदेपुर जिले में 4 गांवों में जैसे कि गुंगावाड़ा, नानी दुमाली, मोटी दुमाली, जलोदा जैसे गांवों में हमने ये अमलीकरण किया है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी उसको देखे तो हम हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम परिवार को मजबूत कैसे करें, परिवार के साथ कैसे मिले। और यहाँ पर जो हमने हमारे 4 वीसीपीसी जो क्या है हमारे यहाँ 4 गांव में वीसीपीसी बाल पंचायत और स्वयं सेवक की नियुक्ति की गई है। और यहाँ पर हमने जो समिति के द्वारा हमारी जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्तियां हमने की जो ऐसे प्रवृत्ति थी कि रिक्त परिवारों का पहचान कैसे किया जाए। और हमारे यहाँ पर जो रिक्त वाले परिवार है, यहाँ पर 87 परिवार है और 87 परिवारों को हमने कैसे पसंद किया है, तो यहाँ पर हमने इन मुद्दों पर ये परिवारों को पसंद किया है कि जो परिवार में गरीबी है, अनाथ बालक परिवार है, विकलांग परिवार है और मानसिक स्वास्थ्य परिवार है, बाल मजदूरी वाले परिवार है, व्यसनी परिवार है, ड्रॉप आउट परिवार है, इन परिवारों को हमने पसंद किया। इसके बाद इन परिवारों में हमने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का हमने सर्वे किया और ये 87 परिवारों में से 99 बच्चे ऐसे निकले कि जो इसमें देखा जाए तो यहाँ 5 सुखाखाड़ी के क्षेत्रों के आधारित हमने देखा तो पारिवारिक संबंध कैसा है, शिक्षण कैसा है, आरोग्य कैसा है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, और इन मुद्दों पर हमने बच्चों का मूल्यांकन किया। इसके बाद फिर हमने परिवारों का सर्वे किया। सर्वे में आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, रेशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, इन सभी कार्ड देखा जाए तो इसके लिए हमने जो समिति की मीटिंग की जो नहीं है, ये काम करते करते जो समिति जो है उन समिति की मीटिंग में हमको ये सोचा कि अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इन परिवारों को ऊंचा लाने के लिए हमने सरकारी विभाग में मुलाकात की और यहाँ पर सरकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया। कलेक्टर मैडम को भी हमने मिला है और सरकारी योजनाओं के साथ इन परिवारों को हमने जोड़ा है।
लेकिन इसमें जो आधार कार्ड नहीं है, श्रम योगी कार्ड, वो सब कुछ नहीं है, इसलिए हमने अवेयरनेस कैंप भी रखा था। उन कैंप में हमने इन परिवारों को सब कुछ जो देखा जाए तो फ्री में लिंकेज करवाया था। और इसके बाद हमने ये रिस्क परिवारों के साथ तालीम भी की, जैसे कि पेरेंटिंग तालीम, लाइफ स्किल तालीम और स्वच्छता की तालीम। इन तालीम के बाद हमने जो परिवारों के साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन उनके साथ हम जुड़े हैं, गांव में है, इसलिए हमने वो परिवार को हमने बांट लिया। जो हमारी VCPC मेंबर्स है उनके साथ हमने ये परिवार बांट लिया। जैसे हमने अन्य विभागों के साथ भी संकलन किया, जैसे कि DCPU, अनुसूचित जाति जनजाति, लाइवलीहुड विभाग, ITR, DIDA, बैंक शाखा, कलेक्टर, श्रम विभाग, मनरेगा, पुरवठा, नाबार्ड जैसे इन विभागों में भी हमने संकलन किया है। और इसके बाद हमने जो काम किया है, यही काम हमारा ये है। अभी अभी जो मैडम ने बोला गेट कीपिंग का शब्द तो मुझे नहीं आता, लेकिन गेट कीपिंग में हमने परिवारों को मिला तो परिवार में काम करने की तरक्की अपनाई, लेकिन जो परिवार है वो उनकी मुश्किल का दूर करने के लिए यहाँ से हमारे गांवों से दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये परिवार के साथ हमने जो मीटिंग की, जो तालीम दी, इसके बाद हमने वो हमारे साथ VCPC मेंबर्स में जो तलाटी है, सरपंच है, वो भी हमारी मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ पर तलाटी जो है उनको 3-4 पंचायत जो सौंप दी गई है, इसलिए हमको हमारी मीटिंग में नहीं आ सकते। और इसके बाद परिवारों की आर्थिक परिस्थिति होने के लिए वो हमारे गांव छोड़कर दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। और जो ऐसे परिवार है, इन परिवारों को मानसिक परिवार है, मानसिक के साथ समय ज्यादा, जो ऐसा परिवार है उनके साथ हमको ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि वो समझते नहीं है। फिर भी हमने बहुत मेहनत की है और हमने हमारे साथ जोड़ा है। और जो बच्चा है, ये बच्चों को परिवार से जुदा नहीं किया, जुदा नहीं होने दिया। और इसके बाद हमने जो बच्चा है जो 0 से 18 वर्ष का बच्चा है, इनको हमने स्कूल ड्रॉप आउट होते थे, बाल मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। जो हमारे यहाँ बाल लग्न का एक माहौल है, इनको हमें 3 साल में हमने कितने बार लग्न भी अटकाए। और जो बालक स्कूल छोड़ के चले गए थे मजदूरी करने के लिए, वो तो सही है, जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी है इसलिए जाना पड़ता है, लेकिन हमने जो ये मेहनत की है, तो अभी अभी जो बच्चे हैं ये अभी स्कूल में पढ़ने के लिए फिर दाखिल किया, 4-4 साल छोड़ दिए थी स्कूल, ऐसे बच्चे भी हमारे पास है। और यहाँ पर जो VCPC मेंबर्स है उनकी जो खासियत देखा जाए, उनकी अच्छी जो बाबतें देखा जाए, तो हम सरकार से बहुत अच्छी तरह से हमारी पहचान हुई, और गांव में भी हमारी पहचान हुई, और आसपास के गांवों के लोगों के साथ भी हमारी अच्छी पहचान हुई। और हमारे गांव के लोग भी बच्चों को लेकर कुछ काम है वो हमारे सामने लेकर आते हैं। और इसके लिए हमने जो गांव में गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए नाटक किया था, चेरी नाटक किया था। और इसके बाद जो हमने जो दूसरी पंचायत वाले सरपंच जी है, वो भी हमको अभी ये VCPC बनाने के लिए भी हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो 3 साल हुआ, इसमें जो कोविड जैसे महामारी आई थी बीच में, तो इनमें हमारे परिवारों को भी और अन्य लोगों को भी राशन किट दी गई थी, लगभग 3000 राशन किट दी गई थी। ये हमारे यहाँ पर छोटाउदेपुर में बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो अवेयरनेस कैंप किया था, इसमें हमने लगभग 500 से 700 लोगों तक हमने, जो हमारा काम है, जो विधवा सहाय है, माता पिता योजनाएं है, ई श्रम कार्ड है, जो वाली दिकरी योजनाएं है, कुंवरबाई का मामेरा है, और जीवन सुरक्षा बीमा है, वृद्ध पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है, और PM किसान योजना है। इन सभी योजनाओं के साथ हमने लोगों को जोड़ा, और ऐसे हम जो काम करते हैं, करते रहेंगे। जय भारत, जय किसान, जय जोहर।
थैंक यू रोशन भाई। काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन था, और जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि ऑन ग्राउंड क्या चुनौतियां आती हैं एंड उसके अराउंड किस तरीके से नेगोशिएट किया जाता है, उस पे आपका काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था। मनिंदर, डू यू वांट मी टू रिकैप एट द एंड ऑफ ऑल 4 सेशंस और वन बाय वन? I think you can recap at the end also, Sharmila. श्योर, लेट्स Yeah. डू दैट देन। जो नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं, निकोल मेंजिस। आई थिंक एवरीबडी मोर और लेस नोज निकोल। Nicole is a social worker with almost 24 years of experience child protection में। Childline India Foundation को आप सब जानते हैं। Childline India Foundation की फाउंडिंग टीम में निकोल played a very key role, एंड वहां पे उन्होंने 13 साल काम किया, एंड 2013 में फिर उन्होंने लहर को फाउंड किया है। लहर जो है चाइल्ड राइट्स नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो करंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पे काम करती हैं, जहाँ पे कि अलग अलग तरीके के जो इंटरवेंशंस होते हैं जो कम्युनिटी लीडरशिप एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन पे ध्यान केंद्रित करते हैं, उस तरीके के काम को स्ट्रेंथन करने के लिए लहर काफी एक्टिव है। Nicole has led and participated in several child protection research studies, developed knowledge and behavior change toolkits on community-led child protection. Nicole very frequently writes and publishes on child protection concerns. Nicole का जो session रहेगा, it will be on gatekeeping. Again, role of जो civil society organizations है, primary level gatekeeping में, community level gatekeeping में, उस पे फोकस रहेगा, और उस पे किस तरीके के टूल्स हो सकते हैं जो एक्टिवेट किया जा सकता है फॉर गेट कीपिंग एज वेल एज आइडेंटिफाइंग फैमिलीज एट रिस्क। प्लस निकोल विल ऑल्सो help us get a better understanding by sharing case studies as evidence in demonstrating interventions. Nicole, over to you. Thank you, Sharmila. Namaskar आप सबको। what do I हाँ, तो शुरू करने से पहले एक्चुअली मैं एक कुछ केस स्टडीज लाई हूँ फील्ड से। लहर एक्चुअली अभी चार राज्यों में काम करते हैं, अलग अलग पार्टनरशिप्स के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ। और अभी फिलहाल हमने पिछले 1-2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 450 CPCs को फैसिलिटेट किए हैं अलग अलग जगहों पे। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि CPCs ओनली फॉर गेट कीपिंग। CPCs के रोल मतलब लार्जर बिहेवियर चेंज, प्रिवेंशन, डिस्कशन, डायलॉग, और आई वुड से गेट कीपिंग उनके रोल का एक हिस्सा होता है। मैं बहुत खुश और इनकरेज्ड हूँ टू हियर जो हमारे गुजरात के CPC मेंबर है छोटा नागपुर से, क्योंकि आपके काम से मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है कि ये काम सारे देश में हो सकता है और होना चाहिए, और आसानी से भी हो सकता है ये काम, अगर हर मतलब कम्युनिटी अपने बच्चों का हित के ऊपर थोड़ा सा फोकस करे, थोड़ा सा मेहनत करे, मतलब काफी सक्सेस हमको मिल सकता है। तो मैं एक केस स्टडी के साथ शुरू करूंगी, जहां फील्ड मतलब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से, जहां से आप लोग को एक केस के बारे में इतना गहराई से समझ पाएंगे, which builds the case for community led mechanisms, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशंस सिर्फ मतलब लोकल सॉल्यूशंस, लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल ओनरशिप से निकल सकते हैं। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, एक सेकेंड। Somebody please confirm to me, can you see? Yeah, it's visible. Yes. हाँ, तो अब मैं प्ले करूंगी। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है एक केस के बारे में, जो actually it is about a family, it is about children who lost their mother and they were kept with their mama mami, and उनको परवरिश स्कीम का लाभ मिल रहा था, लाभ मिलने से भी वो पैसा बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा था, and how the VCPC worked together to find a solution to ensure that the children receive their money and they continue to grow safely. ये तीनों बच्चा जब यहाँ आई तो VCPC
के एक बैठक में इसकी नानी गई थी। वहाँ परवरिश स्कीम के बारे में जानकारी मिला। जानकारी मिलने के बाद वो VCPC के पास गए और ये अपने नाती और नतनी के बारे में पूरा कहानी बताई। VCPC उस बच्चे से मिले, बच्चे के संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करवाए। बच्चे का माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ था। VCPC फिर PRI मेंबर मुखिया जी से बात करके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया। फिर ज्वाइंट पासबुक खुलवाया गया और फिर 2017 में परवरिश योजना से जोड़ दिया गया तीन बच्चे का। ठीक है, जोड़ने के बाद परवरिश योजना का लाभ मिलने लगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो बहन है उसका नाम है शहनाज। शहनाज का मौसी का गांव है शेखटोली। इसका बाद में फिर मौसी भी कोऑपरेट करने लगी और मौसी के लड़का से ही गांव में 3 वर्ष पहले शादी हो गया। शादी होने के बाद इसकी अभी वर्तमान में ये बच्चा जो है उसकी नानी की मृत्यु भी हो गई है। अब बच्ची मामा मामी इसको देखना छोड़ दिया। जब परवरिश योजना का लाभ मिल रहा था तो 2022 में इसका पूरा साल का पैसा इसका मामी क्या की, तो ग्राहक सेवा केंद्र जा करके और पैसा छुड़ा लेते थे और इस बच्ची को नहीं देते थे। घर से भी निकाल दिए इस बच्चे को। तो जब घर से निकाल दिए तो ये महनाज और मोहम्मद अली को क्या की, शहनाज जिसके घर में शादी हुआ है मौसी के यहाँ, तो ये फिर दोनों बच्चे अपने भाई बहन को अपने साथ रखने लगी। 2022 में जब इसका पूरा साल का पैसा नहीं आया तब ये VCPC से बात की। VCPC के साथ ये DCPU कार्यालय गए। दोनों बच्चे का आधार कार्ड, बैंक पासबुक देखे। ऑनलाइन जब चेक किया गया DCPU में तो वहां पता चला जो बच्चे का रेगुलर रूप से पैसा जा रहा है अकाउंट पे। फिर जा करके ये VCPC एक मीटिंग की, जो इस तरह का केस है जो विभाग के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और उसके मामा मामी के द्वारा पैसा इस बच्चे को नहीं दिया जा रहा है। फिर वहां पे VCPC कुछ गणमान्य व्यक्ति को लेकर के उसके मामी के पास गए, जो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, अगर आप पैसा दीजिएगा सो बताइए, नहीं दीजिएगा सो बताइए। फिर जा करके वहाँ पे डिसीजन लिया गया और वो उसकी मामी बोली जो हम इनका जो पैसा हम खर्चा सही में कर लिए हैं, हम पैसा देंगे। VCPC स्पेशल निर्देश दिए उनकी मामी को, जो आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर, अन्यथा आपका जो भी इस बच्ची का पैसा है वो रिफंड कीजिए। उसके बाद फिर 3 किस्त बना करके इस बच्ची का पैसा रिफंड किया गया और वर्तमान में अभी ये जो दोनों बच्चे हैं अपने बहन के साथ शेखटोली में ही रहती है। वर्तमान में शहनाज जो है, जो सबसे बड़ी बच्ची है, वो VCPC में भी जुड़ गई है और जो भी बच्चे से संबंधित किसी प्रकार का समस्या आती है तो उसको पूरा एकदम बारीकी से सोच करके आगे फिर उसको चाहती है जो हम जोड़ पाए। Okay, so I just wanted to share that case study with you all कि ये जो केस फॉलो अप है ये 5 साल के पीरियड में हुआ है। केस शुरू हुआ था 2017 में और ये जो मॉनिटरिंग जो होता है CPC के द्वारा वो रूटीन होता है एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल कि 2022 में टू सी के कुछ गड़बड़ हो रहा है इन बच्चों के साथ। So I think that is one of the key roles of having a community-led mechanism, where जहां हम एक लंबे समय तक फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मतलब स्कीम से जोड़ना इसका ये नहीं मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। We have to continue to support the family, keep monitoring, looking after to ensure कि उनके बच्चे सुरक्षित है और जो लाभ मिलना चाहिए उनके पास पहुंच जाता है। Just to share that हम लोग काफी सिस्टमैटिकली काम करते हुए आए हैं। It's also not gatekeeping
जस्ट फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, आई नो हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि वनरेबल फैमिलीज, बट आई थिंक लहर का अप्रोच थोड़ा सा अलग है. हम लोग आई वुड टर्म इट एज अ सेकेंडरी लेवल इंटरवेंशन, जहां हम लोग वनरेबल कम्युनिटीज के अंदर उस मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, गांव को चुन लेते हैं जहां HDI इंडिकेटर्स, माइग्रेशन ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज नहीं है. हम उस कम्युनिटीज के अंदर काम करते हैं, लेकिन हम पूरे गांव के लिए काम करते हैं. हम ऐसे मंच तैयार करते हैं, बाल संरक्षण समिति और बच्चों के ग्रुप्स, विच जो प्लेटफॉर्म्स बनते हैं पूरे गांव के बच्चे के लिए. तो अनलाइक व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन, हम लोग टारगेटेड फैमिलीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत डिस्कशन पॉइंट्स खोल देते हैं अलग अलग टूल्स के साथ, जिसके द्वारा केसेस अपने आप CPCs पहचानते हैं और लोग भी मतलब रेफरल करते हैं और केसेस को ले आते हैं CPCs के पास. So I won't share this because we only have 10 minutes. Tools. तो कुछ टूल्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं. So मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अस इज, जब हम कहीं मतलब अपना काम शुरू करते हैं, हम एक बेसलाइन, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन बेसलाइन स्टडी के साथ शुरू करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग गांव के लोगों को मतलब एक साथ बुलाकर फोकस ग्रुप डिस्कशंस, अलग कोहॉर्ट्स के साथ, बच्चों के साथ अलग से, बड़ों के साथ अलग से, ड्यूटी बेरर्स जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके साथ अलग से, मतलब उनके साथ डिस्कशंस करते हैं समझने के लिए कि उनकी दृष्टि से बाल संरक्षण के मुद्दे कौन से हैं, और उन्हीं के मतलब दृष्टि के द्वारा हम लोग CPCs शुरू करते हैं और एजेंडा बनाते हैं. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमारा कोई एजेंडा उनके ऊपर नहीं थोपते हैं, हम उनके समझ से उनको मदद करते हैं एक एजेंडा बनाना. एंड वो बेसलाइन एक बेस और स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, जिसके ऊपर हम लोग आगे प्रोसेसेस, आगे टूल्स, मतलब उसी को देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क अभी 10 साल से, एंड where we see success is where the baseline has been strong. Nicole, I'm sorry to interrupt you. Can you put your slides on in like full mode? Okay. But my computer may crash. I'll try. Then I'm it's sorry, okay. something happens. ठीक है, कुछ होता है. सुबह भी क्रैश हुआ था. हाँ. तो that's one, the baseline. फिर हम लोग जब CPCs फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ ऑडियो विजुअल टूल्स हैं, जिसके थ्रू CPCs देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं 2-3 चीज. मतलब फॉर्मेशन कैसे करते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा. आई नो कि बहुत सारे स्टेट्स के पास नोटिफिकेशंस काफी मतलब नैरो नोटिफिकेशंस है कि CPC के अंदर ये मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक डिस्कशन के द्वारा CPCs को कैसे फॉर्म करते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं. फॉर्मेशन के बाद मतलब गांव के सामने CPCs को अनाउंस करना, ताकि सिर्फ CPC मतलब अपने बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव के लोग के पास ये जानकारी होना चाहिए कि ये एक मंच है जहां जिसके पास जब भी कोई भी बच्चे का समस्या हो या कोई कंसर्न हो, हम इनके पास वो मुद्दे ला सकते हैं. तीसरा जो हमने देखे हैं कि CPCs मतलब बहुत एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फुस. सो तीसरा प्रोसेस है कि मीटिंग्स कैसे करना, एक्शंस, फॉलो अप्स कैसे करना, मतलब एक CPC को एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है, वो एक प्रोसेस है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. और फिर उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझाना, और उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव के लोग को समझाना, ताकि CPC एक मतलब एक एलीट मंच नहीं ना बने कि it just becomes a forum of power holders, लेकिन आम लोग भी उनको अकाउंटेबल मतलब पकड़ सकते हैं, उनके पास अपने इश्यूज ला सकते हैं. फिर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर,
जैसे काम बढ़ता है हम लोग अलग अलग मेथडोलॉजीज उनको इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू वो लोग मुद्दे समस्या को और गहराई से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है एक टूल जो स्कूल्स के लिए होता है, जो एकदम सिंपल, जो सीपीसी मेंबर्स लेकर के अपने स्कूल्स को विजिट कर सकते हैं और एक मतलब असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या है हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए, क्या नहीं है। और एक टूल है कुछ इश्यूज के ऊपर हम सिंपल डिस्कशन पॉइंट्स और फ्लैश कार्ड्स, जहां से वो लोग वही मुद्दे बाल मजदूरी, बाल विवाह, नशा पान के ऊपर वो लोग और गहराई से चर्चा कर सकते हैं। और जैसे चर्चा बढ़ जाता है केसेस अपने आप आने लगते हैं। जब केसेस आने लगते हैं हमारे पास एक MIS एप्लीकेशन है CPCs के लिए, जो अभी फिलहाल हम लोग ये सिर्फ हमारे मधुबनी में एज अ लैपटॉप ऐप थ्रू आवर फैसिलिटेटर्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बट वेरी शॉर्टली, मतलब 1 महीने के अंदर वी आर गोइंग टू हैव दिस इन अ मोबाइल ऐप, जहां से सारे CPCs अपने केसेस को खुद मतलब इस सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। दे कैन मॉनिटर देयर केसेस। ये MIS के द्वारा उनको मतलब प्रॉम्प्ट्स भी मिलता है कि एक्शन पॉइंट्स क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं इस बच्चे के लिए। तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑन द राइट ऑफ माय स्क्रीन इज द एनालिसिस। तो हर CPC को लाइव रियल टाइम अगर वो अपना डेटा इसमें एंट्री करेंगे, ये बहुत सिंपल है, उनको कुछ मतलब टाइपिंग इनपुट्स नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप बॉक्स और क्लिक 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 में वो लोग अपने केसेस, अपने डिस्कशंस भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वो खुद अपने रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपना काम देख सकते हैं, कौन से मुद्दे पर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कौन से केसेस मतलब गिर के चले जा रहे हैं, किस इश्यूज पे हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। दे आर एबल टू स्टडी एंड मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। वी ऑल्सो हैव सेल्फ असेसमेंट टूल्स, जो इसमें फिलहाल आई डोंट हैव अ पिक्चर, जहां CPCs अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर अपने आप को रेट कर सकते हैं कि वेर आर वी वीक, वेर आर वी स्ट्रॉन्ग, किस एस्पेक्ट्स पर हमारे क्षमताएं को के ऊपर हमने काम करना है, किस एस्पेक्ट्स पर हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और किन चीजों को हमने इम्प्रूव करना है या किन चीजों पे हमको ज्यादा फोकस लाना है। वी हैव दो सेल्फ असेसमेंट टूल्स। We have a tool for village exhibition, जहां on annual basis CPCs अपने गांव के लोग, जैसे आम सभा के दिन या कोई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन अपने गांव में अपना पूरा काम मतलब एक काउंटर कर सकते हैं, जहां वो अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, अपना काम के बारे में गांव के आम लोगों को बता सकते हैं। We also have सिस्टम असेसमेंट टूल। सो वी हैव सम दो एक्टिविटीज जो हम करते हैं। एक है फिशिंग, विच इज रियली हम लोग उनके साथ मतलब सारे बच्चों के हक को तोड़ देते हैं सिंपल चीजों में, एंड वी डू एन ऑडिट एक्सरसाइज टू सी क्या बच्चों के अधिकार उनको मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। Rights broken up into very simple tangible things like infrastructure, like teachers, like corporal punishment, like harassment in the community, like no light on the road, all of it broken up within the rights framework. और एक मछली के एक्सरसाइज के थ्रू we can do this CPC members के साथ, बच्चों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, to do an assessment के हमारे क्योंकि कुछ कई बार CPC मेंबर्स मतलब 3-4 साल काम करके फिर वो लोग बोलते हैं ये सब पहला प्रॉब्लम था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ये असेसमेंट्स करते हैं उनके साथ, तब समझ में आता है कि कितने सारे चीजें थे लेकिन फिर से प्रॉब्लम्स हो गए, कितने सारे नए प्रॉब्लम्स जुड़ रहे हैं। सो दीज आर लाइक रिफ्रेशर्स टू CPCs and children's group to keep them active. Similarly, we have an activity called 3 Clouds, which is again a methodology for doing assessment of what are our concerns, what are our opportunities, what are the strengths we have developed in our community, and from these we make plans to move forward. Third, जो हमने अभी it's like our latest tool that we are just about launching, is a curriculum बच्चों के लिए for children's groups
It is a curriculum for about 1.5 to 2 years to create मतलब very strong children's groups जो अपने CPCs के साथ मिल करके काम कर सकते हैं, जो अपने गांव के और बच्चों के साथ काम कर सकते हैं. And along with the curriculum, we also have a workbook for children, which is like a little एक scrapbook जैसा है जो हर एक बच्चा के पास जो हमारे ग्रुप्स में है, हर एक बच्चा के पास एक ये वर्कबुक होगा जो वो धीरे धीरे जैसे सेशंस हो रहे हैं ग्रुप्स में बच्चे कुछ चीजें कुछ एक्टिविटीज इसमें भी कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ 2 years उनके पास एक अच्छा सुवेनियर बन जाता है जो वो हमेशा अपने पास रख सकते हैं as he or she grows into adulthood. So these are some of the tools. I just want to stop sharing and appeal आप सबको for one thing that जब हम gatekeeping बोलते हैं, let's not only think of the worst case scenario, but हम लोग को बाल संरक्षण समितियां, बच्चों के ग्रुप्स को इस I encourage you all to think इस दृष्टि से that we create communities where childhood thrives. And I'm sorry, I just want to share one last little case report जो कल आया था हमारे एक field से जहां I'm just going to share my screen and show it to you from my email only if you people don't mind. It's not in PPT format because it came quite late to me yesterday and I thought we should share it. So this is a story of एक लड़की जो अभी 18-19 साल की है. She was part of the CPC since 2014. CPC के through she was part of the बच्चे का group 2014 से. One of her friends, उसकी एक friend काजल ने ग्रुप ज्वाइन किया और फिर नेहा ने काजल के साथ ग्रुप ज्वाइन किया. In the group, Kajal learned confidence, she learned to speak, she learned to talk, sharing ideas. और कहीं ना कहीं उनके जर्नी में लड़कियों का मतलब एक प्रॉब्लम था कि कोचिंग क्लासेस नहीं था उनके गांव में एक था जो बहुत महंगा था. तो लड़कियां ने मिलके they decided कि हम रोज सुबह जॉगिंग रनिंग करेंगे और फिर साथ में पढ़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. इस जर्नी के थ्रू Neha realized that she was very athletic and very good at sports. And dhire dhire they started, as the same group, started playing kabaddi, volleyball, long jump, high jump, etc. And she gradually began to win. Neha मतलब जीतने लगी. नेहा के पास पैसा नहीं था कोचिंग के लिए, लेकिन पूरे ग्रुप साथ में नेहा के साथ प्रैक्टिस करते थे. She was invited, she had to participate, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो पहुंच गई, लेकिन VCPC ने मिलके नेहा के लिए बाइक अरेंज किया जिससे वो जा सकती थी. And now we just heard that she has got in the district level long jump first, athletics district school level competition second, then again district level long jump first, and state level she's got the second prize. So all I want to say and share with all of you is जब हम community mechanisms के बारे में सोच रहे हैं, please think all children. Please don't think only family separation and avoiding going into institutions. Please also think an environment where every child in the community must thrive. Thank you. I'm done. Thanks, Nicole. Thanks a lot for ending with that very important thought as well, that जब हम काम करें गांव में CPCs के साथ communities में, हमारा जो फोकस है वो हर एक बच्चे पे हो और इस तरीके से हो कि जो एनवायरनमेंट हम उनके साथ बनाए, उनके साथ मिलके क्रिएट करें, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट हो जहाँ पे कि नेहा जैसे बहुत बच्चे हैं वो डेवलप करें अपने फुल पोटेंशियल and also sometimes beyond what was maybe imagined by the community initially. Moving on from Nicole, we'll quickly move to our next panelist, Mr. Surendra Tiwari ji. वो CWC member हैं साहिबगंज झारखंड में. सुरेंद्र जी CWC का जो रोल है सेकेंडरी लेवल गेट कीपिंग में उसको लेके वो बात करेंगे.
डॉक्टर तिवारी एक डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं हिस्ट्री में एंड एंथ्रोपोलॉजी में, एंड पीएचडी में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ द पहाड़िया ट्राइब साहिबगंज में उन्होंने पीएचडी की है। सुरेंद्र जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जनवरी 2022 से, एंड डायरेक्टर हैं झारखंड प्राइवेट आईटीआई एंड सेक्रेटरी कौशल्य ज्योति ट्रस्ट साहिबगंज। काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं उन्होंने। सुरेंद्र जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सीडब्ल्यूसी का जो रोल है सेकेंडरी लेवल गेट कीपिंग में, उसको लेकर अगर थोड़ा चर्चा करें। थैंक यू। सभी को जोहार। आज के इस कार्यक्रम में हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड का एक जिला है साहिबगंज, जो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से काफी नजदीक है, और हमारे यहाँ मूल समस्या है ट्रैफिकिंग, खासकर बच्चों की और प्रीमिटिव ट्राइब के लड़कियों की। तो इस विषय पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। यदि हमारे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। एज ए बेंच, साहिबगंज बाल कल्याण समिति जो कार्य किया है, उसमें हम लोगों का पहला, बच्चे जब हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष क्यों लाया गया, बच्चे परिवार से कैसे दूर हो रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं, और पहली प्राथमिकता होती है कि इन्हें घर में आवासित करें। हम लोग उन बच्चों का एसआईआर करवाते हैं। हमारा जिला आईसीपी में काफी पीछे था। मिरेकल फाउंडेशन का अभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम लोग आईसीपी को लेके काफी सीरियस हैं, और पार्ट बी का अवलोकन समय समय पर हो, इसके लिए लगातार निर्देशित कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे और बच्चे के परिवार का काउंसलिंग करते हैं। हम लोग काउंसलिंग में यह बताते हैं कि बच्चे का सर्वोत्तम हित उसके परिवार में है। काउंसलिंग में कई बातें सामने आती है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक शैक्षणिक माहौल नहीं होना, बच्चे का व्यवहार जो परिवार से दूर करता है। यहाँ हम लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं एक केस के माध्यम से आप सबों के सामने एक केस रखना चाहता हूं। चूंकि हमारा क्षेत्र प्रिमिटिव ट्राइब और सांथाल मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र है। डॉक्टर अभी तिवारी, हाल ही में जी जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अभी हाल ही में 2 परिवार बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित हुए। इसमें एक महिला थी जिनके 3 बच्चे थे, बच्चों के पिता नहीं थे, और एक परिवार जिसमें पिता थे, मां नहीं थी। वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बच्चों को आपके यहाँ बाल गृह में रखना चाहते हैं, क्योंकि बगल के जिले में हमारे जान पहचान के बच्चों को रखा गया है। तो हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपके सामने क्या समस्या है। तो वह बताते हैं कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो समझ में, शिक्षकों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, विद्यालय में भाषा का समस्या है, आदिवासी वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब हम लोग परिवार वालों को समझाते हैं कि हम आपको सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो पता चलता है कि उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे जाति हुआ, आय हुआ, निवास। हम लोग कार्य करते हैं बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, चाइल्ड लाइन की सहायता लेते हैं, और वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी सहायता लेते हैं। हम लोग बताते हैं कि बच्चों को जो है 4000 रुपया प्रति माह स्पॉन्सरशिप मिलेगा, हम उस योजना से जोड़ेंगे। फिर भी परिवार का दबाव होता है कि नहीं, कुछ दिनों तक रखिए। तो हम लोग 3 दिनों तक बच्चों को जो है रखते हैं अपने यहाँ बाल गृह में। पुनः परिवार आता है,
बच्चों की भी काउंसलिंग पुनः की जाती है। इस 3 दिनों में हम लोग वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाल कल्याण समिति उनकी कागजी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। परिवार वाले बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि उनकी कागजी प्रक्रिया जैसे जाति आय निवास यह लगभग बनकर तैयार है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनकर तैयार है। हम लोग उनको स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की स्थिति में है और इस प्रकार हम लोग और मिरेकल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराया गया कुछ सामग्री है खेलकूद और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसे हम लोग बच्चों को सौंप देते हैं। स्कूल प्रबंधन को निर्देशित करते हैं कि आप वहां की समस्याओं को दूर करें। शिक्षा विभाग को पत्राचार करते हैं कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र में ऐसे शिक्षक पोस्टेड हों जो वहां के भाषा को जानते हों। तो ये हम लोगों की एक प्रक्रिया है जिससे उस परिवार से हम लोग बच्चों को पुनः जोड़ते हैं। आज बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं प्रत्येक सप्ताह करता हूं और बच्चे अच्छी स्थिति में हैं। अब है कि हमारा जो जिला है या हमारी जो बाल कल्याण समिति है यह गेट कीपिंग के लिए कैसे कार्य करती है, प्रचार प्रसार का काम कैसे करती है। तो हम लोग कम संसाधन में भी चिन्हित किए हैं जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, चाइल्ड लाइन को, और हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA की सहायता लेकर, जैसे हमारे यहाँ हाट बहुत महत्वपूर्ण है, तो हाट में विद्यालयों में खासकर कस्तूरबा विद्यालय में क्योंकि लड़कियों का ट्रैफिकिंग काफी अधिक है, तो उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं बैनर के द्वारा, प्रचार प्रसार सामग्री के द्वारा, कहीं कहीं माइकिंग के द्वारा, और खासकर मेला जो आदिवासी क्षेत्र में मेला का आयोजन होता है वहां भी हम लोग लगातार छोटी छोटी चर्चाओं के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बच्चे परिवार से दूर न हो। और हमारे यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है गांव में प्रधान, गांव का प्रधान। हम लोग उनकी भी कई बैठकें की हैं। हम लोग बताते हैं कि ऐसे परिवार को चयन कीजिए जिन्हें जरूरत है, बच्चे उनसे दूर न हो। हम लोग यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने 2 हॉट स्पॉट का चयन किया है। यहाँ के बच्चे 2 थाना क्षेत्र के 5 से 7 गांव ऐसे हैं जहां के बच्चे पूरे देश भर में फैले हुए हैं। वह संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े जाते हैं और चूंकि उम्र के कारण वो अपराध करने के बाद भी छूट कर आ जाते हैं। तो ऐसे स्पॉट का चयन करने के उपरांत अभी हाल ही में हम लोगों ने पत्राचार जिला प्रशासन को किया, ब्लॉक को किया और हम लोगों ने शिक्षा विभाग को किया कि आखिर बच्चे बार बार क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इन 5-6 गांवों को लेकर है, तो उस पर अभी एक टीम बनने वाली है जो पूरी तरह से जांच करेगी कि ये बच्चे यदि आते हैं तो पुनः दोबारा वापस न जाएं। इन लोगों को भी कई सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। मैं बाल कल्याण समिति द्वारा हाल ही में किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य केस जिसमें हम लोगों ने बच्चे को उसके परिवार से जोड़ने का काम किया, आवासित किया, वो मैं रखना चाहता हूं। 2016 जनवरी माह में एक बच्चा पटना सिटी का वो है जो अपने माँ के साथ ट्रेन में जा रहा होता है, बिछुड़ कर हमारे जिले में आ जाता है। एक व्यक्ति यहाँ उसे रखते हैं, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तत्कालीन बाल कल्याण समिति उस बच्चे को उन्हें ही आवासित कर देती है। यह जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त होती है तो पिछले 28 मार्च को हम लोग प्रयास के द्वारा उस बच्चे को अपने समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, उनके परिवार को समझाते हैं। जो परिवार माता पिता ने रखा था कि इसके जैविक माता पिता से इसका मिलना अत्यंत आवश्यक है, वह सहर्ष तैयार हो जाते हैं। हम लोग जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति पटना, जमुई, क्योंकि बच्चा पटना सिटी में 2016 में रहता था, वर्तमान समय में वह जमुई जिला में रह रहा था, तो वहां फिर हम लोग पत्राचार के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर, मिरेकल फाउंडेशन, मिसिंग पोर्टल, इन सबों के प्रयास से 1 सप्ताह के भीतर उस बच्चे का जो है घर का पता और अभिभावक का पता लग जाता है। फिर हम लोग एक दिन उसे बुलाते हैं, दोनों परिवार को मिलाते हैं, बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है
और परिवार वाले भी बच्चों को पहचान लेते हैं। पूर्ण संतुष्ट होने के बाद कागजी कार्रवाई करने के उपरांत कल हम लोग साहिबगंज उपायुक्त महोदय के हाथों द्वारा उसे बाल कल्याण समिति ने उसके लिए व्यवस्था किया था। शैक्षणिक किट, उसके दैनिक उपयोग की सामग्री जो 2 माह के लिए है, और उसके खेलकूद की सामग्री, वस्त्र आदि, ये सब की व्यवस्था कर कल हम लोग उस बच्चे को जो है हम लोग उसके अभिभावक को सौंप देते हैं। दूसरा केस मैं एक रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ 7 बच्चियां ट्रैफिकिंग होकर बोरियो, एक हमारा सुदूरवर्ती इलाका है पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब का, उन लड़कियों को ले जाया जा रहा था दिल्ली। तो यह जानकारी बाल कल्याण समिति को प्राप्त होती है। चाइल्ड लाइन वहाँ के जो थाना है उनके माध्यम से हम लोग उन बच्चियों का रेस्क्यू करते हैं। काफी समस्या आती है, इसके लिए धमकी भी आती है बाल कल्याण समिति के सदस्यों को, हमारे फोन पर ही आती है, फिर भी हम लोग उसकी परवाह न करते हुए 7 लड़कियों को छुड़ाते हैं। बाल कल्याण समिति के समक्ष वो प्रस्तुत होती हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति माह 8,000 रुपया के माध्यम से ले जाया जा रहा था। उनके परिवार वाले काउंसलिंग में बताते हैं कि 8,000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है, प्रत्येक माह 8,000 देने की बात हुई है। फिर हम लोग उन्हें समझाते हैं कि आप, यह गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हम लोग उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्हें जरूरत क्या है। लड़कियां स्कूल भी जाना चाहती हैं, कुछ लड़कियां हैं कि पढ़ाई नहीं करना चाहती हैं, वो काम चाहती हैं। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की वैसी कोई व्यवस्था है नहीं। फिर हम लोग उन्हें तैयार करते हैं कि आप घर पे रहें, घर पे आपका अच्छा भविष्य है, आपके संग गलत हो सकता है, और वो तैयार हो जाती हैं। कस्तूरबा विद्यालय में उनके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। परिवार वालों को हमने कई योजनाओं से अभी जोड़ने का प्रयास किया है और उन्हें योजनाओं का लाभ शुरू हो गया होगा। इधर हमने जानकारी प्राप्त नहीं की है, लेकिन लड़कियों की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं स्वयं उस गांव तक गया, लड़कियों का हालचाल लिया। आज की स्थिति ये है कि वो ठीक ठाक हैं। अभी मई के पहले सप्ताह में फिर उस गांव में हम लोगों का भ्रमण होने वाला है। एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग प्रचार प्रसार के दौरान बाल विवाह, नशा मुक्ति, शिक्षा जरूरी है और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले परिवारों को, इस पर हम लोग काम करते हैं। स्टेक होल्डर जो हैं, प्रधान जो हैं और जो टीम है पूरी, उस माध्यम से हम लोग काम करते हैं। ये मेरी बात है जो हम लोग पिछले 1 वर्ष में अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और आगे जैसा सभी का सहयोग मिले, दिशा निर्देश मिले। चूंकि हम लोग बहुत ही अत्यंत पिछड़े जिले से हैं, प्रिमिटिव ट्राइब का एरिया है, बहुत कठिनाई है, खासकर दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ों पर बहुत छोटे छोटे गांव हैं। तो हम लोगों का एक प्रयास है एक बदलाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्रनाथ जी। आपने जो कुछ एग्जांपल्स बताए अपने सेशन में, I think all of us in the sector struggle with issues like that every once in a while. And I think जो आपके सेशन में एक जो बहुत अहम चीज मुझे लगा is the power of persuasion as well as pursuing an entire issue till its logical conclusion. इस तरीके की चुनौतियां आती हैं, बहुत बार आती हैं, स्पेशली CWC लेवल पे, बट उसको एंड तक एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, फॉलो अप्स करना, एंड कितने लोगों के साथ कितने बार फॉलो अप करना होता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट. सो वी रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू हैव पुट इन, आल्सो जो आपने शेयर किया. So thanks a lot for that. The next session is going to be by Geeta Rani Lorembam. प्रोग्राम मैनेजर है वो प्रेरणा मुंबई में. गीता रानी विल स्पीक अबाउट द रोल ऑफ CSOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी लेवल गेट कीपिंग में. गीता रानी comes with over 5 years of experience of working with juvenile justice systems across महाराष्ट्र, बिहार एंड तेलंगाना. उन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है TIS से.
प्रेरणा में जो है गीता रानी हैज वर्कड एक्सटेंसिवली विद चाइल्ड विक्टिम्स रेस्क्यूड फ्रॉम कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग, एंड उनका फोकस यही रहा है कि इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाए. She has also facilitated capacity building and system strengthening initiatives with child protection functionaries across Maharashtra. Currently, Geeta leads Project Unnati. Geeta, if I can request you to share your thoughts as well as start your session. Thank you so much, Shamila ji. Thank you so much IACN and Miracle Foundation प्रेरणा को इनवाइट करने के लिए आज के मंच पे. सेशन शुरू होने से पहले मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो हमारा मोस्टली एक अर्बन सेटिंग का लर्निंग्स है, अर्बन एंड सेमी अर्बन सेटिंग्स का लर्निंग होगा. तो थोड़ा सा उसके हिसाब से मे बी प्रोग्राम को हमने अडेप्ट किया है और उससे रिफ्लेक्ट करके उस तरह से यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है. मैं अपना पीपीटी शेयर करते हैं. क्या ये सबको विजिबल है? Yes, Geeta, it's visible. ओके, थैंक यू. Can you मैं make it थोड़ा- full screen? Sorry, Yes. Geeta. Okay, na. Yeah, it's fine. थैंक यू. सो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि प्रेरणा के लिए हमारा गेट कीपिंग इंस्टीट्यूशन और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में काम करना किस बैकग्राउंड से शुरू हुआ. हमारा काम 35 इयर्स अगो रेड लाइट एरिया, मुंबई के रेड लाइट एरिया में चालू हुआ था और तब हमने देखा था कि जिन बच्चे को संस्था की ज़रूरी है उनको शायद संस्था की सर्विस नहीं एक्सेस करने को मिल रहा है, क्योंकि संस्था ऑलरेडी भरे हुए थे, क्योंकि कोट एंड कोट एक हॉस्टल के माध्यम से संस्था चल रहे थे उस टाइम पे. तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ वहाँ पे एडवोकेट करने लगे कि संस्था एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसके लिए है, किन बच्चे को संस्था पे रख सकते हैं, किस समय, कितने समय के लिए रख सकते हैं, और कौन से बच्चे हैं जो संस्था पे रखे बिना उनके साथ और उनके फैमिली के साथ काम हो सकता है. तो कम्युनिटी लेवल पे गेट कीपिंग, कम्युनिटी लेवल पे हमारा काम काफी समय से चलता आ रहा है. बट आज के समय पे हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है, प्रोजेक्ट उन्नति करके, जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड सेकेंडरी गेट कीपिंग के ऊपर काम करते हैं. फैमिली स्ट्रेंथनिंग एंड अल्टरनेटिव केयर अप्रोच से लेके महाराष्ट्र का जो स्टेट का जुवेनाइल जस्टिस रूल है उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि फैमिली सपोर्ट सर्विसेज को प्रमोट करना जरूरी है ताकि बालक को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट होने से रोके, जहाँ तक पॉसिबल हो और जहाँ पे बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट में हित पे हो उनका. तो प्रोजेक्ट उन्नति ऐसा एक प्रोग्राम है जो फैमिली सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि चाइल्ड को अपने बायोलॉजिकल या फिर अपने एक्सटेंडेड फैमिली से सेपरेट होने से रोके, और अगर बालक संस्था में एडमिट हो गया है तो उनको अपने परिवार के साथ फिर से रीयूनाइट करे, जितना पॉसिबल हो उतना और जितना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में आता है. हमारा अभी 3 जिला में ये प्रोग्राम चालू है. मैं आज ये प्रोग्राम के बारे में आप सब लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ. CWCs के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं. मुंबई सिटी, थाने एंड मुंबई सबअर्बन में काम हमारा चालू है. मुंबई सिटी एंड सबअर्बन इज अ वेरी अर्बन स्पेस. थाने में अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल एरिया भी कवर होता है. ये अपना हमारा गेट कीपिंग का मॉडल है जो हम अभी प्रेरणा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हमने हेल्प डेस्क नाम का एक इंटरवेंशन चालू किया है. ये इंटरवेंशन ओरिजिनली हमने 2018 में चालू किया था, जब तब के CWC ने सारे NGOs के साथ मीटिंग बुलाया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बहुत सारे बालके हैं, उनके माँ बाप है, बहुत सारे स्टेक होल्डर है, पुलिस है, सोशल वर्कर्स है, जो CWC के प्रेमाइस में आके काफी सवाले होते हैं उनके कि यहाँ पे कौन बैठे हैं, क्या किस तरह की सुविधाएं मिल सकते हैं, एक्ट के अनुसार क्या बोला गया है उनके बारे में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन वो लोग एप्लीकेशन लिख नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाता है. तो उनके साइड से ये रिक्वेस्ट आया था कि क्या आप लोग मिलके एक ऐसा सर्विस शुरू कर सकते हैं ताकि इन बालक और उनके फैमिली को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ओरिएंटेशन मिलने में कि जे सिस्टम होता क्या है और उनके लिए किस तरह से प्रेजेंट है. तो वैसे करके प्रेरणा में 2018 में शुरू किया था हेल्प डेस्क का इंटरवेंशन मुंबई सबअर्बन CWC में.
और तब जब हमने शुरू किया था तो हमारा काम काफ़ी JJ एक्ट को ओरिएंटेशन देना और अपना डॉक्यूमेंटेशन अंडरटेकिंग लिखने में या फिर एप्लीकेशन लिखने में पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो वहाँ पे आते हैं उनका सपोर्ट करना, इस तरह से होता था अलॉन्ग विद केस प्रेजेंटेशन CWC के सामने। यहाँ पे ये ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनलाइक बाकी जिला और बाकी राज्य से थोड़ा अलग, मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन में केस लोड बहुत भारी रहता है, जिसके वजह से CWC, जैसे सुरेंद्र सर ने अभी बोला कि वो लोग खुद बात करते हैं माँ से, वो लोग खुद बात करते हैं बच्चे से, उतना टाइम बैंडविथ यहाँ के CWCs के पास उतना नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो JJ का बेसिक ओरिएंटेशन है वो देने के लिए हम पिक्चर में आते हैं। नाउ यहाँ पे जब हमने गेट कीपिंग का काम शुरू किया तो हमने लास्ट ईयर से हेल्प डेस्क के काम पे एक और हमने विंग ऐड किया, एक और हमने एलिमेंट ऐड किया जो था फैमिली सपोर्ट सर्विस का। तो इसमें हम अभी ये बोल रहे हैं कि जो भी बालक और फैमिली CWCs तक पहुंचते हैं ये बोल के कि हमको अपने बच्चे को संस्था पे रखना है, हम फैसिलिटेट करते हैं कि अगर पुख्ता तरीके से असेसमेंट हो पाए, उनका सोशल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक से हो पाए, ताकि हमें वाकई में पता चले कि इन बालक को संस्था की जरूरी है कि नहीं है, क्या ये बालक सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार CNCP में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं मगर रिस्क पे है तो हम किस तरह से उन फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि सेपरेट उस बालक को अपने फैमिली से सेपरेट होने की जरूरी ना पड़े। हम बहुत कॉन्शियस है कि गेट कीपिंग स्टेट का और CWC का मैंडेट है, और इसमें बस हेल्प डेस्क इंटरवेंशन इस मैंडेट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है गेट कीपिंग का ये स्मूथली फैसिलिटेट हो सके। जो हेल्प डेस्क में हमारे पास बच्चे आते हैं, आज अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में हमने 200 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को हेल्प डेस्क के थ्रू असिस्ट किया है, और उन 200 में से कुछ कुछ ऐसे केस है जो CWC ने आइडेंटिफाई करके हमको गेट कीपिंग के लिए रेफर करके दिया है। तो वो केसेस के ऊपर फिर हम डायरेक्ट सोशल केस वर्क पे काम करते हैं। डायरेक्ट सोशल केस वर्क हम फैमिली स्ट्रेंथनिंग अप्रोच को ध्यान में रख के काम करते हैं। बहुत सारा एलिमेंट है मगर जो ब्रॉड एलिमेंट है वो आज मैंने यहाँ पे PPT में लाया है, जिसमें पॉजिटिव लिंकेज, जैसे बाकी भी रिसोर्स पर्सन्स ने भी बात की कि बाकी सर्विस प्रोवाइड करने वाले एजेंसी के साथ लिंक करके देना या फिर योजनाओं के साथ सर्विस के साथ लिंक करके देना, उसके साथ ही साथ अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बना है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, इन सब में चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये भी अपना सोशल वर्कर, केस वर्कर फैसिलिटेट करके देते हैं। उसके साथ ही साथ हम साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत हमारा रिगरस एंड रेगुलर 1-on-1 फॉलोअप रहता है जहाँ पे हम सेफ्टी एंड नीड्स पीरियोडिकल बेसिस में असेस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में हम असेस करते हैं, और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जहाँ पे जरूरी हो वो असेसमेंट के बाद हम लिंक करते हैं। हमारा इस प्रोग्राम का एक बहुत अलग और इंटरवेंशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है पेरेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग, जो हमको काफी अभी तक जिसका रिस्पॉन्स काफी इफेक्टिवली आया है। हम ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को गैदर करते हैं और उनको इफेक्टिव पेरेंटिंग के साथ उनके साथ हम इफेक्टिव पेरेंटिंग में सेशन लेते हैं, बिहेवियर चेंज इन चिल्ड्रन के ऊपर सेशन लेते हैं, उनके साथ हम योजनाओं के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं उसका सेशन लेते हैं। अगर उनको खुद का कुछ माइक्रो बिजनेस शुरू करना है तो वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज टैप कर सकते हैं, उस तरह का चर्चा हम पेरेंट्स के साथ करते हैं इस इंटरवेंशन के अंदर। देन देयर इज अ कंपोनेंट, एक छोटा कंपोनेंट है डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट का, जो हमारा ब्रिज सपोर्ट है। महाराष्ट्र में एटलीस्ट एक योजना के साथ जुड़ने तक जिस पॉइंट में एक पेरेंट CWC को अप्रोच करते हैं उस पॉइंट से एक योजना के साथ जुड़ने तक थोड़ा टाइम लगता है। एक तो सोशल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में टाइम लगता है, फिर अप्लाई करने के बाद वो योजनाओं से वो अमाउंट सैंक्शन होके आने में टाइम लगता है। तो उस टाइम में सपोर्ट करने के लिए एक ब्रिज फाइनेंशियल सपोर्ट हम फैमिलीज एंड चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे शायद एक बच्चे का स्कूल फीस कवर हो जाए ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना होना पड़े। तो इस तरह का सपोर्ट हम गेट कीपिंग मॉडल जो मुंबई में और थाने में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो बड़ा बड़ा एलिमेंट आता है। आई थिंक गेट कीपिंग जो चीज है ये हमने देखा है इसमें कि जो मैं आगे वाले स्लाइड में भी आने वाली हूँ कि सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू
चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू ही नहीं रहता है, मगर बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ, वल्नरेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारा सबसे बड़ा लर्निंग है कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इशू है उसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको हमें डोमेस्टिक वायलेंस के साथ भी लिंक करके देखना पड़ेगा, लाइवलीहुड के साथ भी लिंक करके देखना पड़ेगा, डिसेबिलिटी के साथ भी लिंक करके देखना पड़ेगा, ट्राइबल राइट्स के साथ भी लिंक करके देखना पड़ेगा, दलित इश्यूज के साथ भी लिंक करके देखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज के ऊपर काम करना, ये जब एक कन्वेंशनल केस वर्क अप्रोच होता है तो वो बहुत बालक के ऊपर सेंटर्ड होता है, बट इस मॉडल में हम फैमिली को सेंटर कर रहे हैं, बालक को बीच में रख के। तो इसका जो इंटरवेंशन का स्कोप है वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम फैमिली को एज अ यूनिट पकड़ते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगी, मैं थोड़ा चैलेंज और रिकमेंडेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। चैलेंज ये आता है कि अभी गेट कीपिंग और अगर हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जैसे शब्द और गेट कीपिंग जैसे शब्द देखें तो ये इंडिया में आजकल आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर ये बहुत पहले से चल रहा है, बट ये टर्मिनोलॉजीज थोड़े से नए हैं। और ग्रास रूट में जो अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए इन टर्म को एक्सेप्ट करना और इन टर्म से सोशलाइज होना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, ऑपरेशनलाइज करके दिखाते हैं, तब एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा हमको दिखाई देता है यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स के बीच में, खासकर वो स्टेक होल्डर्स जो CWC के आंखें कान बन के फील्ड पे जाते हैं असेस करने के लिए, उनके बीच में CNCP का डेफिनेशन का क्लैरिटी काफी कम है, जिसके वजह से अगर हम बोलते हैं कि CWC के पास कोई अप्रोच किया है किसी ने और सोशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट एक CNCP के लेंस को रख के असेसमेंट जब नहीं होता है, तो उस रिपोर्ट से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना CWC के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। देन हमने ये भी देखा है कि कम्युनिटी में कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज की कमियां या फिर अल्टरनेटिव केयर ऑप्शन के काफी बार स्टेक होल्डर के सामने या तो संस्था या घर, ये दो ऑप्शन के बीच में लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, सोशल फिजिकल प्रेजेंस है जो दिखाई देते हैं। मगर जब अल्टरनेटिव केयर के जो दूसरे ऑप्शन है, अगर वो एक्सेसिबल और फिजिबल नहीं है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टेक होल्डर उन सर्विसेज को टैप करना शुरू करे। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज ऑप्शंस भी बहुत आज जितना है, एटलीस्ट मुंबई जैसे जगह में हम देखते हैं कि काफी सारे संस्थाएं काम करते हैं, काफी सारे सर्विस चालू है, बट वो भी कम है कंसिडरिंग बच्चों के वल्नरेबिलिटीज को लेके। तो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में कम्युनिटी में सर्विसेज होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लिंकेजेस प्रॉपरली हो पाए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग असेस करने जा रहे हैं, वो अपने असेसमेंट में इस तरह के सर्विस को भी आइडेंटिफाई करें। सिर्फ ये नहीं कि घर जाके विजिट में जाके बच्चों से या फिर माँ बाप से बात करके वो वापस आ रहे हैं, मगर अपने सराउंडिंग के एरिया का माइंडफुल हो और अपने सराउंडिंग के एरिया को ठीक से वो लोग ऑब्जर्व करें और इस तरह के सर्विस आइडेंटिफाई करें। देन जो लास्ट पॉइंट है, जो मैंने पहले भी बोला था कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और बाकी वल्नरेबिलिटीज का कोरिलेशन है, उसका एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन अभी तक जितना हो सकता है उतना हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग इश्यूज पे काम करते हैं, बट वो साइलोस पे काम कर रहे हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन is rural development issue, child protection is urban development issues। तो जब इन सब चीजों के बारे में बात आती है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन भी उस मैप में आना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रिकमेंडेशन है जो हमारे लर्निंग्स के अनुसार हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। एक तो ये है कि ट्रेनिंग्स काफी सारे होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हमने देखा है कि लार्ज ग्रुप को असेंबल करके ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग करने के बाद भी उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिवली नहीं दिखाई देना, इसका ये हमने कहीं कहीं स्टेजेस पे देखे हैं। तो अभी फिलहाल हमने छोटा ग्रुप को लेके उनके साथ लर्निंग सर्कल्स शुरू किया है, ताकि JJ एक्ट के प्रिंसिपल और गेट कीपिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सोशलाइज करने के लिए। अभी तक जितना हमने किया है काफी इफेक्टिव होते हुए देखा है इसको। अल्टरनेटिव केयर सर्विस और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की जरूरी है, विच ऑल्सो मीन्स कि फंडर्स
इन सर्विसेज में उनका रिसोर्स अभी डालना जरूरी है। फंडर्स को CSR हो, नॉन CSR हो, उनका रिसोर्सेस या फिर किसी और तरह के भी रिसोर्सेस हो, वो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में जाना काफी जरूरी है। और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज डे केयर सेंटर हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ओपन शेल्टर हो सकता है। तो इन सारे ऑप्शन स्ट्रॉन्ग रहना काफी जरूरी है। देन एक कम्युनिटी में जो रिसोर्स है और CWC के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होना जरूरी है, जहाँ पे हम बात करते हैं मे बी फॉर अ रिसोर्स डायरेक्टरी जो DCPU के अंदर आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस के एम्बिट के अंदर आ सकता है। वहाँ पे कम्युनिटी में क्या क्या रिसोर्स है और CWC को अगर उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम हो तो वो लिंकेजेस काफी स्मूथली हो सकता है। ये एस्टैब्लिश करने की बहुत जरूरी है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टेक होल्डर्स, ये जारी रहना बहुत जरूरी है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में काफी सारी चीजें निकल के आते हैं व्हिच माइट नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट, जिससे एक इफेक्टिव असेसमेंट रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो एक पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्फिडेंशियली शेयर किया था। तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे के माँ तंबाकू खाते हैं इसलिए बच्चे को उनके यहाँ देना नहीं चाहिए। तो सो इस तरह का रिपोर्ट्स अगर आएंगे तो इट डजंट रियली हेल्प CWC टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि इंडिया जैसे जगह पे तंबाकू खाना बहुत नॉर्मलाइज्ड है। तो हम कौन सा सोशलाइजेशन से आके इस तरह का असेसमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट हमारा पुख्ता हो, CNCP के डेफिनेशन हम ठीक से जाने, ये कैटेगरी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन रीजनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हर जगह में टू कीप ऑन डिस्कसिंग, इसके बारे में चर्चा करते रहना। जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको साथ में आके इसके बारे में चर्चा करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में अभी हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहाँ पे हम में से कुछ संस्थाएं और हम में से कुछ इंडिविजुअल लोग साथ में आए हैं और हमने पीरियोडिकल ये चर्चा करना शुरू किया है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से भी हमको नजर आता है कि लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी बढ़ जाता है और लोग क्रॉस लर्निंग काफी कर पाते हैं कि दूसरा संस्था क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस है जो हम साथ में मिलकर नेविगेट कर सकते हैं। तो गेट कीपिंग को इफेक्टिवली काम करने के लिए ये थोड़ा सा रिकमेंडेशन मैं आज के मंच पे लाना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू शर्मिला। Thanks a lot, Geeta. Also for actually sharing the urban context. I think it was missing so far. And the pressures on a city like Mumbai in terms of doing case management and why there is requirement as well as need for other, organizations such as yours to complement existing services. Otherwise, जिस तरीके का caseload मुंबई जैसे शहर, ऐसे कुछ और शहर भी हैं of course में आते हैं, वहां पे जिस तरीके के रिगर की बात हम कर रहे हैं वो होना मुश्किल ही नहीं, impossible हो जाएगा actually. So thanks a lot for bringing that perspective as well as the other kind of complementary services and add-on kind of work that Prerna is supporting the system with. Sharmila, So- can we take the question and answers? Nicole Yeah, I has was just going to ask. Yeah. Maninder, there are two I can see in the chat box and one in the Q&A. We'll start with that and then let's open it up. Yeah. Yeah? Okay. So there are, okay. Go ahead. Go ahead. So there is this question, how to scale up gatekeeping mechanism and how to ensure ownership of government department in the context of gatekeeping. So any of the panelists who would like to respond to this question? Nicole, would you like to respond to this question? The first one, right? Yes. Yeah. So may I respond in English and then maybe one of you can translate if you don't mind, because I leave out words if I. So I think what we are seeing in Deher now that we are scaling up through partnerships with the Childline organizations and others across the country is that if you get your tools right, it is really possible to do, because now that we've got maybe about 150, 200 CPCs that are about say 6 to 8 months old, we are seeing that they are discussing in such an accelerated way that took us
about 3-4 years to reach in Madhubani when we were doing things by trial and error. That was the experience that developed the tools. So I think tools is important. I think the ownership of the government to me is a bit of a how do I say? I would think of it as a tightrope. You don't want too much ownership also, where the CPC becomes a power holders, and it is already becoming that. And I think Leher is fighting against it. You know, we don't want it to become a power holders platform where only the frontline workers are having very elite discussions, but we have to look at it as a vibrant space where ordinary citizenry and the government are interacting together. So I think government ownership should not be government and other organizations who are influencing government, civil society organizations who are influencing government on CPCs, to make it a very straight-jacketed intervention. Because when we do that, we are not giving the flexibility for different states, regions, villages to adapt to their local context, to methodologies that work for them. So Mission Vatsalya has got a statement which we have to really reflect upon, because it says the title is Block, District, Village Child Protection Committees. But then it goes on to say that the government should designate the appropriate standing committee to take on matters of women and child protection and development. Now, when you see the standing committees within the panchayat, they are general standing committee, health, education. Not all states have anything that connects to women or children. Some may do. You may see in Tamil Nadu, some may do, but some don't. So we have to do some very creative thinking around this. At the same time, villages are very big, and जब हम ग्राम पंचायत लेवल पर ये कमिटीज शुरू करते हैं, not all villages, in not all places are they able to reach families and communities. So we really have to think of creating this structure, maybe at the gram panchayat level, but the vibrant CPC has to exist at a level below the gram panchayat, at the village, at the tola level, where the families and communities are. So I think thought is required. We should not do a very black and white approach on this, because it should not restrict our flexibility to adapt, because the ability to adapt is the key ingredient to be able to achieve scale. And the less we try to control it, the more we leave to the communities, the more they will flourish and own their own issue. That's it from me. Thanks, Nicole. इसको हिंदी में ट्रांसलेशन की जरूरत है, बिकॉज निकोल ने मिक्स्ड भी जवाब दिया था, इंग्लिश हिंदी का दोनों का प्रयोग किया था. सो इफ एनीबडी रिक्वायर्स अ हिंदी ट्रांसलेशन, प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट वन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. वी आर ऑलरेडी fairly late. How are the different government programs linked to ensure children are protected, and do VLCPCs also, are VLCPCs also involved in this process? Would any of the four panelists like to take these questions? क्या अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों से लिंक किया जा सकता है, और इसमें VLCPC किस तरीके से इन्वॉल्व रह सकता है? हमने जो बच्चों के लिए जो काम करते हैं, तो इसमें हम गवर्नमेंट के साथ जो हमारे गांव के बच्चे लोग है वो व्यसन करते हैं, उन व्यसन को किस तरह से बंद किया जाए, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं. और इसके बाद हमने DCPU के साथ भी उन बात को रखा गया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्लॉक पर लेवल पर भी हमने ये बात की कि हमारे बच्चे जैसे व्यसनहीन हो, जैसे कि जो बच्चा है वो उसका शिक्षण आगे बढ़े,
और उसका ऐसे ऐसी तरह से संरक्षण करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल में भी इन्वॉल्व VCPC, हमारी VCPC डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल में भी इन्वॉल्व हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू रोशन भाई। और कोई इसमें बोलना चाहेगा? रोशन भाई ने जो बोला उस पर कोई अगर ऐड करना चाहे जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट हैं। प्रोग्राम मैनेजर दीपक फाउंडेशन, उसमें आप थोड़ा सा प्लीज माइक के पास आ जाइए। हाँ, तो रोशन भाई ने जो बताया उसमें हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो हम लिंकेज कर सकते हैं, जो ड्रग्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसके साथ भी लिंकेज करके हम काम कर सकते हैं। चिल्ड्रन चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए DCPU के साथ हम लिंकेज करके काम कर सकते हैं। और जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DCPC और TCPC जो बन रही है उसमें भी विलेज लेवल के लोकल DCPC के लोगों को इन्वॉल्व करके हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा एरिया ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इश्यू है और चाइल्ड के अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो 5 डोमेन्स पे हम काम करते हैं वो सभी डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करके हम ये प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्विंग कर सकते हैं। थैंक यू। अगर इस पे और कोई सवाल है तो अगेन प्लीज चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। सुरेंद्र जी आप कुछ बता रहे थे क्या? स्पॉन्सरशिप स्कीम के कारण काफी फायदा हो रहा है और खासकर लड़कियों को जो इधर हम लोगों ने 116 स्पॉन्सरशिप को हम लोगों ने पास किया है अपने यहाँ से, हम लोगों ने CNCP घोषित करते हुए। इसका लाभ ये मिल रहा है, कई का उसमें राशि चालू हो चुकी है, तो इसका फायदा ये हो रहा है कि वो अब जा नहीं रही हैं, वो विद्यालय जा रही हैं और उसका लाभ मिल रहा है। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये है। झारखंड में प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप है? जी झारखंड में प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप एक्टिव है क्या? बिकॉज हर स्टेट में नहीं है। नहीं, झारखंड में 2000 रुपया हमारे यहाँ हर बच्चों को मिल रहा था, जो इस माह से 4000 रुपया हो गया है। हाँ, बट उसके लिए जरूरी ये है कि बच्चा CCI में टाइम स्पेंड करे कि अगर फैमिली वल्नरेबल है? नहीं, जो फैमिली उसको नहीं ये है। हाँ, और जो हम लोग सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उसको एक्टिव करवाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना होता है, तो वो लाभ मिल रहा है हम लोग को। बढ़िया, थैंक यू। शर्मिला, हमें एक और क्वेश्चन मिला है अनीता जमघट से। डे केयर सेंटर कैसे जुड़ सकता है CWC के साथ और डे केयर के बच्चों का आधार कार्ड बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? इन्होंने लिखा है, मैंने सिर्फ आधार कार्ड का उदाहरण लिया है, मगर अन्य जरूरतों के लिए कम्युनिटी की कैसे मदद की जा सकती है, NGO के द्वारा या स्टेट के द्वारा? तो डे केयर सेंटर पे एक इन्होंने क्वेश्चन है इनका। थैंक्स मनिंदर। सुरेंद्रनाथ जी, चूंकि आपने अपने सेशन में इसको लेके काफी कवर किया था, खैर डे केयर सेंटर को लेके स्पेसिफिकली नहीं, बट किस तरीके से CWC जो है काफी एंगेज्ड है एंड काफी फोकस्ड है बच्चों को सोशल प्रोटेक्शन, अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स एंड फैमिलीज के जो भी पेपर वर्क है इन प्लेस करने में, अगर आप इसको स्टार्ट कर सकें देन विल ओपन इट अप टू अदर पैनलिस्ट्स। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही है, बट आपका कैमरा दूसरी तरफ टर्न है। अब ठीक है। जी बताया जाना। मैं रिपीट करूं क्या सवाल? जी। हाँ, तो सवाल ये है कि डे केयर सेंटर कैसे जुड़ सकते हैं CWC के साथ और डे केयर में बच्चों के आधार कार्ड बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने सिर्फ आधार कार्ड का उदाहरण लिया है, मगर अन्य जरूरतों को कैसे हम NGO मदद कर सकते हैं कम्युनिटी के लोगों को? NGO की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कई NGO का साथ लेकर हम लोगों ने कई काम किए हैं। जैसे कई स्थानों पर बाल विवाह को जो रुकवाने का काम है, हमने संस्थाओं के माध्यम से ही किया है। संस्थाओं ने हम लोगों को सूचित किया और ब्लॉक के ऑफिसर्स को, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको सूचित किया। संस्था का बहुत बड़ा सहयोग है
ये में। और आधार की जहां तक बात है, आधार कार्ड का, तो हमारे यहाँ आधार कार्ड की बहुत समस्या है। हमने जो 2 हॉटस्पॉट के संबंध में आपको बताया था, उसमें से दोनों हॉटस्पॉट का अधिकांश बच्चों का आधार कार्ड 1 जनवरी 1 बना होता है, मतलब 1/1/1990, 1/1/2000 इस प्रकार का होता है। तो उसमें हम लोगों ने कई एनजीओ से संपर्क किया है कि आप ये पता करने का प्रयास कीजिए फील्ड विजिट करके कि आखिर प्रत्येक बच्चों का, उनके माँ का, उनके पिता का, ऐसा मैंने 37 केस अभी अपने रजिस्टर में चिन्हित किया है कि एक एक ही क्यों है। तो फिर आगे देखते हैं कि हम लोग क्या मदद ले सकते हैं। ये एक केस है जो अखबार में भी आया था इसको लेकर। इसमें मैं थोड़ा हेलो जी, मैं हमारा जो अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ। दीपक फाउंडेशन एक संघात प्रोजेक्ट करके हम, और हमारा जो सेंटर है सब उसमें काम कर रहे हैं। तो संघात प्रोजेक्ट में हम जो कम्युनिटी के साथ जिनके जो आधार कार्ड नहीं है और जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके लिए वो जो स्कीम में नहीं जुड़ सकते हैं, तो वो हम कैंपेन चलाते हैं और उसका डॉक्यूमेंट सब क्लियर करवाते हैं और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब गवर्नमेंट के साथ लिंक करके उनका डॉक्यूमेंट उनका पूरा करवाते हैं। तो बाद में उनको ये स्कीम का लाभ मिलते हैं। उसको हम 1 विंडो अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। तो ऐसा भी कुछ एनजीओ के साथ मिलके कर सकते हैं। दीपक फाउंडेशन में हमने एक संघात प्रोजेक्ट चलाया है, वो अलग अलग स्टेट में भी चलता है और गुजरात में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में भी हम चलते। जी शुक्रिया। Again, in the interest of time, I think this is the last question. Let's take it. Child protection and gatekeeping में basic difference क्या है? चूंकि ये conceptual question है, Maninder, can I please request you put it down in the chat box and we'll move to the next question instead? Sure. Yeah. Next question ये है, vulnerable communities में जहाँ पे child labor is erratic, unless we start primary gatekeeping to work in the grassroots, how secondary? Okay. I think what the question means is vulnerable communities में किस तरीके से हम secondary level gatekeeping रख सके ताकि child labor and इस तरीके के जो child protection के major concerns हैं उसको holistic manner में address किया जाए. This is open to of course all panelists, but चूंकि secondary gatekeeping की बात है, if I can also request maybe Geeta to come in on this. Hi, thank you. Thanks. I think जो हम काम करते हैं ना शर्मिला जी, in our CWCs, respective CWC, उसमें चाइल्ड लेबर एक तरह का, एक प्रकार का केस है जो हमारे पास आते हैं। तो जब हम केस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो सेकेंडरी लेवल में सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, बच्चे और उनके फैमिली को एजुकेशन, लाइवलीहुड, इन सब अपॉर्चुनिटीज के साथ जब हम जुड़ के देते हैं तो वी डेफिनेटली सी कि सेकेंडरी लेवल में ये इशू टैकल हो सकता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि एक बार असेसमेंट हो और सीडब्ल्यूसी के साइड से और जो एनजीओ जुड़े हैं या डीसीपीयू चाइल्डलाइन जुड़े हैं उनके साइड से बहुत पुख्ता फॉलोअप चालू रहे। कभी कभी रेस्टोरेशन होने के बाद फॉलोअप उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चा फिर से चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाता है। तो उस तरह का मैकेनिज्म अगर हम सेट फोर्थ करें, जो जेजे एक्ट में सेक्शन 37 है जिसमें फॉलोअप ऑर्डर देने का सीडब्ल्यूसी को पावर दिया गया है, जो हमने देखा है काफी सारे सीडब्ल्यूसीज एटलीस्ट हमारे अनुभव में देखा है कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उस ऑर्डर का। तो वी रियली होप कि अगर सेक्शन 37 के अनुसार अंदर फॉलोअप ऑर्डर्स डीसीपीयू, चाइल्डलाइन, एनजीओज या फिर कोई भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो बालक के साथ काम कर रहे हैं उनको पास कर सकते हैं, तो वो एक लीगली बाइंडिंग हो जाता है उन बच्चे और उन फैमिली के साथ काम करने के लिए एंड पीरियोडिकल फॉलोअप एंड विजिट्स रखने के लिए। सो उस तरह का टूल यूज करना इज समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। थैंक यू। Thanks Geeta. I think इसमें I'll just quickly add also जो panelists ने पहले भी बोला है that if we provide an environment where the child is able to develop, where the child is able to thrive, then issues like child labor can be prevented right at the community level. जो वहाँ पे जो social safety net है, अगर उसको हम मजबूत करें तो वहीं पे ये वाले जो issues है वहाँ पे रोका जा सकता है।
I think, Maninder, let's just move to the concluding. We are already at 10 minutes to 1. Yes, please. Yeah? Okay, Yeah. great. So thanks a lot. Thanks a lot for this session and for all your panelists for sharing your thoughts and your experiences. A lot of case studies. I think case studies always help get an actual sense of issues क्या है और उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है और उसका एक रिजल्ट क्या देखा जा सकता है. Not everything is linear. Results are not always linear either. We move back and forth. But as long as we're taking 2 steps forward and 1 step back, I think we're still okay. जो हमारा just to quickly round up, and I will not go panelist by panelist, and because Maninder, I'm guessing that there will be a report or something that is going to be circulated, right? Yes. Yes. So I'm not going to go panelist by panelist because वो सब details जो हैं वो मनिंदर जी भेजेंगी सारे participants को. But I think overall जो 2-3 मुद्दे common थे अलग-अलग panelists के sessions में is that child protection जो है वो एक बहुत ही holistic एक issue है जहाँ पे एक range of issues cover किया जाता है, and it's really good to hear every one of the panelists, even जो कुछ सवाल आए थे ये एक बात बार बार आ रही है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है हम सिर्फ चाइल्ड लेबर ना देखें या चाइल्ड मैरिज ना देखें या इस तरीके का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में कौन बच्चा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस इशू को हम आइसोलेशन ना देखें. एक पूरा एनवायरनमेंट, एक पूरा इकोसिस्टम है around the child that makes the child either vulnerable or takes away vulnerabilities. तो उस इशू पे काम करना बहुत जरूरी है. सबने इनफैक्ट बोला, चाहे वो सीपीसी मेंबर हो, चाहे वो सीएसओ से हमारे साथी जो जुड़े थे, चाहे वो सीडब्ल्यूसी मेंबर हो, सबने एक्चुअली रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ फैमिली काउंसलिंग, अलग अलग रोल्स में, अलग अलग focus areas में, but everybody spoke about the role of the family and the role on family counseling and the role and the need to include the community. जो एक बात बोली जाती है इंग्लिश में that it takes a village, takes an entire village to raise a child. I think वो एक बहुत ही tangible way में निकल के आया है इस सेशन से. Every single panelist has spoken about this. The other piece is that जो भी हमारा काम हो वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से हो, हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करें, अलग अलग विभिन्न तरीके के राइट्स, फैमिली, हाउस होल्ड इनकम, मेंटल हेल्थ, साइकोसोशल सपोर्ट, वी लुक एट ऑल ऑफ दिस, but we always keep the child in the center of our focus and the center of our program. If we do that, all the other layers start fitting in well. So instead of working the other way around कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो नहीं करके अगर हम बच्चे को अपने प्रोग्रामिंग के सेंटर में रखें और उसके हित में क्या है, अगर उसको हम अपने प्रोग्रामिंग के सेंटर में रखें, I think a lot of the contradictions, a lot of the questions start getting sorted out and streamlined. So I think वो बहुत जरूरी है that हमारा जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सीपीसी स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हो, जो भी हो, उसके बीच में हम हमेशा we keep the child's well-being and the protection of the child right in the center of our programming, and everything else is a layer that builds on that. And the third point is that if we are talking about the fact that बच्चा जो है या चाइल्ड के जो प्रोटेक्शन इश्यूज है वो आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, then it's also that much more important to ensure that we are all working together. Every state has a different context. हमने urban context सुना, हमने tribal context सुना. गुजरात में, again, Chota Udeipur also is a tribal district. I work in Gujarat. We heard from Nicole about her experiences from different project areas. But whatever the context is, whatever the caseload or specific issues, microculture जो भी है उस इलाके का, ये बहुत जरूरी है कि उस कॉन्टेक्स्ट में जितने हमारे प्लेयर्स हैं सिस्टम में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको समझें और उनके साथ काम करें. एक कन्वीनिंग रोल रहे, एक कन्वर्जेंस रहे, तब जाके जो पूरा एक होलिस्टिक इशू है इसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे. इवन डिपार्टमेंट्स में, आई थिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम बार बार आया, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के संदर्भ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम आए, of course social justice and empowerment department, women and child development department. We keep them all together and we move together. Otherwise ये जो पूरा होलिस्टिक इशू है उसको हम अकेले तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमको सबके साथ मिलके इसको आगे ले जाना पड़ेगा.
And only then do we ensure that the child can thrive and that the environment is strong enough to hold the child up. I think that's it from me. Maninder, I'll hand over to you. Thank you, Sharmila. Now we end this webinar. हमें पता है हमने टाइम क्रॉस किया है, बट आई थिंक सबके लिए इस वेबिनार से बहुत जानकारी मिली हमें अबाउट गेट कीपिंग, और हमने बहुत अच्छे से समझा कि गेट कीपिंग क्या है और कैसे की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, कम्युनिटी और CWC के लेवल पे। तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने सबने ज्वाइन किया और इस सेशन को पॉसिबल किया, क्योंकि इससे हमारी एक कमिटमेंट दिखती है टू लर्न फ्रॉम ईच अदर इन प्रोवाइडिंग नर्चरिंग, caring, protective family environment for our children. तो and I greatly appreciate our panelists जो कि इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए बहुत पावरफुल केस स्टडीज और उनकी क्रूशियल लर्निंग्स कि कैसे गेट कीपिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उन्होंने हमसे प्रॉमिसिंग प्रैक्टिसेस शेयर की जो कि आगे जाके बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स अपनी स्टेट्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। And we are very thankful to the chair, Ms. Sharmila Ray, for facilitating the panel discussion and capturing some very important insights जो कि सेशन से निकल के आई हैं। एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी मिरेकल फाउंडेशन टीम झारखंड में, गुजरात में, और मिरेकल्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन दीपक फाउंडेशन जिन्होंने हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया इस वेबिनार को करवाने के लिए। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है गेट कीपिंग को लेकर, या आप चाहते हैं IACN और मिरेकल किसी और थीम पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑल्टरनेटिव केयर, फैमिली बेस्ड केयर की किसी थीम पर आगे भी कोई सेशंस ऑर्गेनाइज करे, तो आप हमें लिख सकते हैं at IACN secretariat@iacn.in, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल ID। और थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। Thanks. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.